It's time to start right now. So I will take you to the Bear Act. ठीक है? So सेक्शन 37 हम डील कर रहे थे, लास्ट प्रोविजन बाकी थी सेक्शन 37 के. We will discuss that. What section 37 of Indian Partnership Act 1932 actually says? Try to understand. So section 37. Yes. Try to understand. What is given in the section 37? Right? क्या लिखा है ध्यान देना. So section says when, right, section 37, right of outgoing partner, outgoing because of retirement or death or insolvency of a partner or expulsion of the partner, right? Rights of outgoing partner in certain cases to share the subsequent profits, to share the subsequent profit. So it means after his retirement. So once he ceases to be partner, suppose इस डे पे सीज हो रहा है, एंड इसके बाद जो फर्म्स प्रॉफिट कमा रहे इसमें भी उसको शेयर रहेगा, राइट, प्रोवाइडेड सम कंडीशंस, right, are satisfied. Try to understand. Where any member of the firm, any member of the firm has died or otherwise ceased to be partner, death के बाद वो automatically cease to be partner or otherwise cease to be partner, and the surviving or the continuing partners carry on the business of the partnership firm with the property of the firm without any final settlement of the accounts as between them. This is very important. This is the condition. The partners, the continuing partners have decided to continue the firm, right, with the property of the firm without settling the accounts between them, without the settlement of the account between them. This is important condition. And ठीक है, outgoing partner or his estate क्या हुआ है, and the outgoing partner or his estate then in the absence of the contract to the contrary, in the absence of any contract, right, the outgoing partner or his estate is entitled at option of himself. They are talking about option of himself. So he has a choice, either A or either B, ठीक है, or his representatives to such share of the profits, such share of the profits made since he ceased to be partner, right, as may be attributable to use of his share in the property of the firm. प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट मिलेगा, वो जिस दिन सीज हुआ पार्टनर होने का उस दिन से अकाउंट सेटल होने तक उस पीरियड में फर्म ने जितने प्रॉफिट्स कमाए उसमें से सम प्रॉफिट्स ही विल गेट, राइट, and that profit not share in the PSR but actually share in the, right, you can say capital ratio in simple words, right, in the ratio, right, of his share in the property. Again, or interest at the rate of 6%, ठीक है, per annum on the amount of his share in the property of the firm. So ये कल हमने देखा था, ये हमने कल समझा कि if there is no provisions in the deed related to the settlement of the accounts of the partner and a partner ceases to be partner and his accounts are not settled and firm carries on a business, right, in that case such partner, outgoing partner, has a right to share the profits of the firm from the date he ceased to be partner till the date of his actual settlement of the accounts, right, or interest at the rate of 6% for that period. आगे क्या लिखा है ध्यान देना, प्रोवाइडेड, यहाँ पे कल आके हम रुके थे, राइट, प्रोवाइडेड दैट where by the contract between the partners. Now here is a contract. यहाँ पे क्या लिखा था, in the absence of contract, मतलब ये उल्टा है, समझ में आ रहा है. If there is no contract, section 37 will prevail. But अगर contract है तो section
37 will not prevail. So क्या बोल रहे, provided that whereby contract between the partners an option is given to surviving or continuing partners to purchase the interest of the deceased or outgoing partner. Between the partners क्या डिसाइड हुआ है, जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका शेयर सम ऑफ द पार्टनर्स और रिमेनिंग पार्टनर्स विल शेयर, दे विल परचेस. समझ में आ रहा है? एंड दैट ऑप्शन इज ड्यूली एक्सरसाइज, और ऑप्शन भी क्या किया गया, एक्सरसाइज किया गया. क्या है कि डिड में लिखा है अगर कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसका जो शेयर है इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म विल बी परचेस्ड बाय सम अदर पार्टनर्स. दैट इज राइट गिवन इन द डीड. एंड नाउ एज पर दैट ऑप्शन ए पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स या उनमें से कोई, राइट, एक्चुअली वो ऑप्शन एक्सरसाइज भी करता है. तो आगे क्या होगा ध्यान देना, राइट. द एस्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर और द आउटगोइंग पार्टनर, राइट, as the case may be, is not entitled to any further or any right share in the profits or other share in the profit. Means they are talking about अगर ऐसे कुछ एग्रीमेंट है, ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर का शेयर इन द प्रॉपर्टी परचेस करता है एंड वो ऑप्शन एक्सरसाइज भी होता है, वो किसी ने परचेस भी करना चाहिए. समझ में आ रहा है? इन दैट केस such outgoing partner has no right to share the subsequent profit. बिकॉज इसमें कोई एक पार्टनर ने उसका शेयर परचेस किया है, कोई पार्टनर्स ने मिलकर उसका शेयर परचेस किया है. नाउ द फर्म इज नॉट लायबल टू राइट repay the outgoing partner. Actually those partners who have purchased his shares are now liable to pay to the outgoing partner. So firm के profit में he will have no right. आगे right subsequent profits की हम बात कर रहे हैं. Then आगे क्या लिखा है, but if any partner assuming to act in the exercise of the option does not in all material respects comply with the terms thereof, he is liable to the account under the foregoing provisions of this section. And ऐसे केसेस में हमने क्या बोला कि अगर कोई पार्टनर उसका शेयर परचेस करता है तो सच आउटगोइंग पार्टनर हैज नो राइट टू शेयर द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स. बट ऑप्शन तो एक्सरसाइज किया, आपने शेयर परचेस भी किया उसका, हाउएवर आपने उसका अकाउंट सेटल नहीं किया. इन दैट केस भले ही कॉन्ट्रैक्ट में क्यों ना लिखा हो कि देयर इज अ मोड ऑफ सेटलमेंट. व्हाट इज द मोड ऑफ सेटलमेंट? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विल परचेस हिज शेयर, राइट. भले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है मोड ऑफ सेटलमेंट, उसके तहत ऑप्शन भी एक्सरसाइज किया गया बट सेटलमेंट हुई नहीं है. इन सच केस ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, ही इज इंटाइटल्ड टू सेक्शन 37. ऐसे पार्टनर के केस में ही हैज द राइट टू शेयर द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, राइट. या तो उसको उस प्रॉफिट में शेयर मिलेगा एट द राइट और इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. इसके बारे में हम बात कर रहे थे, राइट. अगर चाहिए तो मैं आपके साथ एक फाइल शेयर भी कर सकता हूं. आई विल शो यू, एक सेकंड. आपको थोड़ा क्लिक होगा उससे. एडवांस इश्यूज होने चाहिए. यस ये था. यहाँ पे सेक्शन 37 आपको दिखेगा. क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, पता होना चाहिए ये चीज है.
यहाँ कहाँ पे तो रहेगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बट मिल जाएगा, एक सेकंड। वर्किंग नोट से क्लिक हो जाएगा, मुझे क्वेश्चन पूरा देखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज गिवन, राइट ऑफ ए आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स, वही उन्होंने लिखा है, राइट। वो सेक्शन यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल, देखो ये एग्जांपल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। आपके स्क्रीन पे देखो, दिस इज इंटर का मॉड्यूल। देखो क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ABC आर इन पार्टनरशिप, right, sharing profit and losses equally, their ratio is 1:1:1. C retires on 31st October 2014, so date of retirement is 31st October 2014, ठीक है। So date of retirement is 31st October 2013. यस, एग्जाम्पल, ठीक है। क्या लिखा है देखो, लिखा है ABC are the partners sharing profit and losses equally, 1:1:1 is their PSR, बराबर। आगे C retires on 31st October 2014. C कब रिटायर हुआ, 31st October 2014 को। So this is the date of retirement, 31st October 14 को। The capitals of partners after all necessary adjustments stood at 50,000, 75,000, 1,20,000 respectively. So is दिन after all adjustment, revaluation, goodwill adjustment, then your distribution of accumulated profit and losses, ये सब adjustment के बाद उनका capital stood at, right, 50,000, 75,000 and 1,20,000. So total capital तीनों का मिला के, right, 2,45,000 है। तीनों का capital इस दिन कितना है, on the date of retirement of a partner or death of a partner is 2,45,000। आगे क्या लिखा है देखो, A and B continue to carry on a business without settling the accounts of C. So they have decided to continue the firm, but they have not settled the account of C. Final payment to C is made on 1st February 2015. आप कब पेमेंट कर रहे हो, 1st February 2015। कितने मंथ्स के बाद सेटल किया है आपने, अक्टूबर खत्म हो चुका है, नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 मंथ्स के बाद आपने उसका पेमेंट किया है। सो 3 मंथ्स, so you have been using his property, his estate for 3 months. The continuing partners were using his property for 3 subsequent months. तो 3 मंथ्स के लिए उसका सेक्शन 37 क्या रहेगा, एक्सरसाइज होगा। ध्यान देना क्या होगा, the profits made during this period, during the period of 3 months is 28,000. So he is entitled to, क्या लिखा है, under section 37 C can exercise any one of the two options. Option 1, ये जो 28,000 प्रॉफिट्स है 3 मंथ्स में, जो आपने 28,000 कमाया है, that has been earned by employing 2,45,000 कैपिटल, तीनों का कैपिटल 2,45,000 कैपिटल डाल के आपने कितना कमाया, 28,000। उसमें जो पार्टनर सी रिटायर हुआ है उसका कैपिटल कितना था, 1,20,000। So he is entitled to share in the subsequent profit to the extent of the profits earned using his property. So you have been using his 1,20,000 to earn 28,000. So सिंपल, इसमें अगर 2,45,000 इन्वेस्ट करके आप 28,000 कमाते हो तो उसका 1,20,000 से कितना, by investing 2,45,000 for 3 months you are earning 28,000, उसमें से उसका 1,20,000 है तो उसका कितना रहेगा, that comes to 13,714। कितना आएगा, 13,714। and then interest at the rate of 6% per annum, or so उसका 1,20,000 था,
at the rate of 6% for 3 months, 1,800. So he will go for whichever is higher. Since option 1 is beneficial to C, the outgoing partner, he will necessarily go to the his इसके लिए वो ऑप्शन करेगा, इंटरेस्ट के लिए जाएगा, प्रोपोर्शनेट शेयर के लिए जाएगा, प्रोपोर्शनेट शेयर इन द प्रॉफिट्स के लिए जाएगा. तो हमें उसको उस दिन 1,20,000 उसका कैपिटल प्लस शेयर इन द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट 13,000, राइट, 714, राइट, उतना हमें उसको पे करना पड़ेगा. सो ये एग्जांपल था जो मैं आपको अभी बोल रहा था, एंड आगे भी एग्जांपल्स में रहेंगे, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. जितना मुझे लॉ के लिए रिलेवेंट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ. सो नोट्स पे आते हैं, क्या लिखा है ध्यान देना, ठीक है. सो आई सिंपली मीन ये समझ में आना चाहिए, ठीक है. नाउ अब नोट्स में भी वही लिखा था, राइट, राइट, देख सकते हो आप. प्रोवाइडेड दैट वियर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, राइट, contract between the partners, an option is given to the surviving or continuing partners to purchase the interest of the deceased partner or outgoing partner, and that option is duly exercised, the estate of the deceased partner, right, or the outgoing partner or his estate, as the case may be, is not entitled to share in the profit. अगर वैसे एक्सरसाइज होता है ऑप्शन, तो he is not entitled to share in the profit. Subsequent profit में वो शेयर नहीं करेगा, राइट. एंड दूसरा उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम उसको पे नहीं करते हैं, वो जिन्होंने उसका शेयर परचेस किया है, अगर वो उसको पे नहीं करते तो he will be entitled to subsequent share in the profit. Now I will move to, right, duties of the partner. Simple है, ध्यान देना. There are two types of duties. Rights में mandatory and optional ऐसे कुछ नहीं था. Right, those rights जो भी थे, they can be varied by the agreement between the partners. जो भी rights थे, right, they were subject to the contract between the partners. Means rights can be changed, right, through the agreement between the partners. अब आगे क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, ठीक है. Duties are of two types: mandatory duties and general duties. Mandatory duties cannot be changed by the agreement between the partners. अगर कोई ऐसा agreement है which changes the mandatory duties of the partners, such agreement is not correct. That agreement is not valid. General duties can be changed between the partners through their agreement. Basically, there are four mandatory duties. Four mandatory duties होते हैं. First duty, try to understand, right? First mandatory duty is to carry on a business of a firm to the greatest common advantage. It is very common duty कि अब partnership is a fiduciary relationship. Partnership is a like out of mutual trust. So जब पार्टनर साथ में आके पार्टनरशिप कर रहे, साथ में आके बिजनेस कर रहे, तो ऐसे केसेस में क्या करना है कि जो पार्टनर्स है दे शुड कैरी ऑन ए बिजनेस फॉर द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज. एक दूसरे के फायदे के लिए उन्होंने क्या करना चाहिए, राइट, बिजनेस करना चाहिए, राइट. सो फर्स्ट ड्यूटी विच कैन नॉट बी changed in any circumstances is to carry on a business, right, with greatest common or for the greatest common advantage. Then next क्या है, they have to be just and faithful to each other. क्या बोला मैंने, they should be just and faithful to each other. Obviously अभी तक हम इतने बच्चे पूछ रहे थे सर अगर वो ऐसे करता है तो वो ऐसे करता है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज देयर ड्यूटी. They have to be just and faithful to each other. What do you mean by just and faithful to each other? मतलब they should not conceal anything from the other partners related to partnership. Example, some partner is using the partnership property for his own benefit. Such facts should not be concealed from the other partners. You have to be just and faithful to each other. Whenever some partner requires information from you, you should give authenticated information. You should give correct information. समझ में आ रहा है? You should not deny, right, the providing such information. Even in case of death of a partner, अगर उसके legal representatives और उसके legal heirs आपसे information मांगते हैं, तो you should provide the information because you have to be just and faithful to each other. Then to render, क्या उसके बाद कौन सी ड्यूटी लिखी उन्होंने, राइट, लिखा है to render true accounts and full information on all the things affecting the firm to any partner or his legal representatives. This is their third mandatory duty. Render true accounts. जो भी अकाउंट्स है पार्टनरशिप के वो लाइक मिसरिप्रेजेंटेड नहीं होने चाहिए.
फ्रॉड नहीं होना चाहिए उनमें। जो भी हमने ट्रू अकाउंट्स बाकी पार्टनर्स को अवेलेबल करवा के देना चाहिए। अगर कोई बोलता है हमारा प्रॉफिट कितना है, वी शुड communicate them the correct profit. We should, right, should not understate the profit, right? हमने कुछ इनकम ये नहीं करनी चाहिए, कंसील नहीं करनी चाहिए बाकी पार्टनर से। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ आई सिंपली मीन, राइट, जब मैं ये बात कर रहा हूं कि पार्टनर शुड गिव ट्रू accounts and full information related to partnership to each other, and these are very common duties. ऐसे कुछ extraordinary duties है ऐसे नहीं। पार्टनरशिप इज ए फ्यूडिशनरी रिलेशनशिप, ये म्यूचुअल ट्रस्ट से होती है। तो अगर आप म्यूचुअल ट्रस्ट में हो तो ये एक दूसरे पे उतना ट्रस्ट होना ही चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड द लास्ट वन, टू इंडेमनिफाई ईच अदर फॉर द फ्रॉड, राइट, टू इंडेमनिफाई द फर्म फॉर द लॉस कॉस्ट टू इट, फॉर द लॉस कॉस्ट टू इट बाय द फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है, then it is his mandatory duty to compensate the firm, to indemnify the firm. That duty cannot be waived off through the agreement. Try to understand. उसको फर्म को compensate करना ही पड़ेगा. There is no other option. I think क्या बोल रहा हूं ध्यान देना। मैं बोल रहा हूं कि willful negligence अलग है, willful negligence अलग है, फ्रॉड अलग है। फ्रॉड में क्या होता है, फ्रॉड एक बंदे से नहीं हो सकता, फ्रॉड के लिए एक पूरी चेन होनी चाहिए। फ्रॉड में एक एरिया में फ्रॉड नहीं कर सकते। फ्रॉड करने के लिए आपको हर चीज मैनेज करनी पड़ती है। फ्रॉड करने वाले दिमाग वाले होते हैं, हमेशा याद रखना, राइट। बिकॉज फ्रॉड करके उसको कंसील करना इज वेरी चैलेंजिंग थिंग, उस सामने वाले को समझ में नहीं आना चाहिए। एंड जब ऐसे होता है, एंड विलफुल मिस्टेक अलग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। फ्रॉड अलग है एंड मिस्टेक अलग है। हमने अकाउंट्स में भी समझा होगा कि एरर्स अलग होते हैं एंड फ्रॉड अलग होते हैं। Try to understand. I simply mean errors, right? अनजाने में होती है, fraud intentional होता है। And try to understand, it is a mandatory duty of a partner to compensate the firm, to indemnify the firm, right, for the loss caused because of his fraud. इसके लिए कोई उसको माफी नहीं कर सकता, ना ही कोई एग्रीमेंट उसको उससे वेव ऑफ कर सकता है। So these 4 duties are mandatory duties. कौन कौन सी बोला मैंने? एक, राइट, टू कैरी ऑन ए बिजनेस, राइट, ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। क्या बोला मैंने? टू कैरी ऑन ए बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, सबके बेनिफिट के लिए बिजनेस करना। दूसरा, राइट, टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ फेथफुल रहना चाहिए, जस्ट रहना चाहिए, इक्विटेबल रहना चाहिए। Third, render true accounts and all the information, true accounts and true information whenever asked by the other partners. And fourth, in case you commit a fraud and firm suffers because of your fraud, it is your mandatory duty to compensate the firm for the loss caused to it because of your fraud. अब ध्यान देना, एक एक, right, समझाया गया है। To carry on a business to the greatest common advantage. Every partner is bound to carry on a business of the firm to the greatest common advantage. क्या लिखा है उन्होंने? Every partner, right, is bound, मतलब ड्यूटी है उसकी, to carry on a business to the greatest common advantage. He is bound in all the transactions. क्या लिखा है? He is bound in all the transactions affecting the partnership to do his best in the common interest of the फर्म। एवरी पार्टनर का टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि उसके एक्शन सबके लिए बेनिफिट ही करे। समझ में आ रहा है? देन टू ऑब्जर्व गुड फेथ, दिस इज द सेकंड। टू ऑब्जर्व गुड फेथ क्या लिखा है? पार्टनरशिप इज ए फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विच डिपेंड्स ऑन द ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट। एवरी पार्टनर मस्ट बी जस्ट एंड फेथफुल एंड ऑब्जर्व utmost good faith towards each other of the firm. That is expected out of every partner. Good faith requires that he shall not obtain a private advantage at the expense of the firm. What do you mean by good faith? A partner should not make profit at a cost of the firm. Private profit नहीं कमाना चाहिए उसने. Whatever he does should be for the everybody. Example बोल रहा हूं कि simple example देता हूं. Partners है, suppose ABC are the partners.
ABC आर द पार्टनर्स, सी की बाहर पहचान है, एग्जाम्पल क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, सी की पहचान है, दे आर कैरिंग ऑन ए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, दे आर कैरिंग ऑन ए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, एंड सी को एक सीमेंट डीलर पता है, हमें सीमेंट बैंक्स लेने फर्म के लिए, एग्जांपल दे रहा हूं, सीमेंट बैग्स परचेस करने, सपोज यू हैव टू परचेस 1 लाख सीमेंट बैग्स, 1 लाख बैग्स। अब ये पार्टनर से एक दूसरे के, सी नोज ए डीलर, सी नोज ए डीलर इन ए सीमेंट बैग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब क्या हो रहा है कि सी डीलर से जाके बात करता है कि एक सीमेंट बैग 350 रुपीज की है, कितने की है, मार्केट में 350 की है, समझ में आ रहा है? तू क्या कर, राइट, आई विल परचेस 1 लाख बैग्स फ्रॉम यू, आई मतलब फर्म विल परचेस 1 लाख बैग्स फ्रॉम यू, एक काम कर तू, राइट, इसके लिए, राइट, फर्म से 350 रुपीज ले, एक बैग कितनी की, 350 की है, तू फर्म से 350 रुपीज ले, और इतना बड़ा मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूं, इसलिए बाद में तू पर बैग के पीछे मुझे 20 रुपीज कमीशन दे दे। सी ने डीलर से क्या बात की कि देख, हमें हमारी कंस्ट्रक्शन फर्म है, हम साइट्स पे हमें 1 लाख सीमेंट्स की जरूरत है, एंड इसलिए हम तुझसे सीमेंट बैग्स परचेज करेंगे। ऑब्वियसली डीलर भी बोलेगा 1 लाख, मिनिमम 1 लाख बैग्स की डिमांड है, तो ऑब्वियसली आप सोचो कि सेलर भी बोलेगा ना कि बिजनेस हो रहा है, वो डीलर बोलेगा कोई बात नहीं, वो बोल रहा मैं इतना परचेस कर रहा हूँ, इतने क्वांटिटी में परचेस कर रहा हूँ, तो तू मुझे 350 जो मार्केट प्राइस है उससे कम में दे। वो बोलता है कि मैं आपको 330 में एक बैग दे दूंगा, आप इतने लॉट में परचेस कर रहे हो, आई विल गिव यू एट 330 पर बैग। तो सी बोलता है ठीक है, तुझे 330 में तू रेडी को देने को तैयार है ना, अब क्या काम कर, तू बिल बना देता है 350 के हिसाब से बिल बना, तू बिल बना देता है 350 के हिसाब से बिल बना, और बाद में जो 20 रुपीज तू हमें डिस्काउंट देने वाला था ना, वो तू मुझे दे दे। मतलब तू फर्म से कितना ले ले, 350 पर बैग ले ले, और फिर उस बैग में से, राइट, फॉर एवरी बैग परचेज बाय द फर्म तू मुझे 20 रुपीज दे दे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें सी इज मेकिंग प्रॉफिट, पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म। ही इज नॉट फेथफुल टू ईच अदर, he is not like trustworthy in this example, he is breaking the trust, he is breaking the mutual trust, this is a kind of fraud, try to understand। तो हर बैग के पीछे 20 रुपीज, ऐसे 1 लाख बैग के पीछे यू कैन, राइट, आप निकाल सकते हो कितना प्रॉफिट आएगा, मल्टीप्लाई बाय 20 करो, राइट, 20 लाख का प्रॉफिट वो कमाएगा। सो पूरा का पूरा पेमेंट कौन करेगा, फर्म करेगी 350 का, और बाद में उसमें से 20 रुपीज किसके प्राइवेट अकाउंट में जाएंगे, किसके, सी के अकाउंट में जाएंगे। नाउ, राइट, मैं वही आपको समझा रहा हूं, क्या लिखा है यहाँ पे, गुड फेथ रिक्वायर्स दैट ही शैल नॉट मेक प्राइवेट एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ द फर्म। एक्चुअली ये जो 20 रुपीज का बेनिफिट जो मिलने वाला था, वो एक्चुअली किसको मिलना चाहिए था, फर्म को मिलना चाहिए था, बट अब किसको मिल रहा है, एक पर्टिकुलर पार्टनर को मिल रहा है, सी को। In that case, we can say there is no good faith. Good faith means we should not, right, make personal gain by, right, expense or at the expense of others. Others means the firm. Then, again, he is bound in all the transactions affecting the partnership to do his best in the common interest of the firm. It is his responsibility. तो यहाँ पे is he doing for the common benefit? No, actually he is doing it for personal benefit. So such act is nothing but the fraud on a firm. Try to understand. समझ में आ रहा है? So I cannot say he is acting in a good faith. We can hold him liable for that rupees 20 lakhs. एक बैग के पीछे 20 रुपीज, ऐसे 1 लाख बैग के पीछे, राइट, आप निकालो 20 lakhs आ जाएगा। समझ में आ रहा है? So I simply mean, right, in that case it is a fraud and it is his duty to compensate other partners or the firm for this 20 lakhs। तो बाद में बाकी पार्टनर उसे वो 20 lakhs लेके फर्म के अकाउंट में डाल देंगे, या उससे रिकवर करेंगे, उसके कैपिटल से माइनस करेंगे, एज द केस में बी, इट्स देयर चॉइस। सो सेकंड, फर्स्ट मैंने क्या बोला, टू कैरी ऑन ए बिजनेस फॉर द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, उससे ही आपको समझ में आता है कि देयर हैज टू बी ए फेथ, राइट, पार्टनर्स शुड हैव फेथ इन ईच अदर, राइट, दे शुड act in a good faith
to indemnify for the fraud. Every partner is bound to indemnify the firm for any loss caused to it by his fraud in the conduct of the business of the firm. उसका पर्सनल फ्रॉड है, उसका वो किसी दूसरे बिजनेस में पार्टनर है, वहां पे फ्रॉड होता है, उसके लिए ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंपेंसेट अस, ही इज रिक्वायर्ड टू कंपेंसेट टू दोस पार्टनर्स. बट अगर हमारे फर्म में फ्रॉड करता है वो, तो इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंपेंसेट अस, हमारे फर्म को उसने कंपेंसेट करना चाहिए. ठीक है, आगे पर्सनल फ्रॉड्स को हमें कोई लेना देना नहीं है, हम पार्टनरशिप फ्रॉड्स के बारे में बात कर रहे हैं. आगे, दिस इज एन एब्सोल्यूट ड्यूटी, this is a mandatory duty of a partner and no partner can contract himself out of it. आप कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे नहीं डाल सकते कि if I commit a fraud other partners will not hold me responsible, or any partner if commits fraud will not be held responsible for other partners. ऐसे आपके डीडी में प्रोविजन नहीं हो सकती, because that defeats the intention of the law. ऐसे provisions are not allowed. Try to understand, this is a mandatory duty. Therefore any partner who commits the fraud cannot absolve himself from that liability at any cost. Then the innocent partners of the firm are therefore, right, the innocent partners of the firm, right, are however liable to, right, third parties for the contract. अच्छा, ये मैं समझाता हूँ क्या है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ. ठीक है, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान देना. अब यहाँ पे फ्रॉड हो गया, डोंट यू एग्री विथ मी, राइट? यहां पे जो फ्रॉड हुआ है इसके हिसाब से फर्म हैज सफर्ड 20 लाख रुपीस. फर्म हैज सफर्ड हाउ मच? 20 लाख रुपीस. अब इस केस में होगा क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड. ए एंड बी विल रिकवर दिस 20 लाख फ्रॉम होम? सी. अब दूसरा एग्जांपल देता हूं. ठीक है, दूसरा एग्जांपल. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. इसी एग्जांपल में सपोज मैं बोलता ए बी सी आर द पार्टनर्स, ए बी सी आर द पार्टनर्स. सी परचेसेस गुड्स, सीमेंट बैग्स. सीमेंट बैग्स परचेस करता है. ठीक है, एंड देन राइट 1 लाख के पीछे सपोज राइट 350 पर बैग एक्चुअल उसकी प्राइस पड़ी है. राइट, एक बैग आपको 350 में गिरी, ऐसे समझ के चलो. अब क्या हो रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी वाई व्हेन एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट 350 पे एंटर कर रहा है. मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं सिमिलर टाइप का, बट उसमें थोड़ी कंडीशन अलग है कि सी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन द नेम ऑफ द फर्म विद अ सीमेंट डीलर. ठीक है, और उससे 350 में एक बैग परचेस करता है, इसे 1 लाख बैग्स परचेस किए. ठीक है, अब ध्यान देना क्या हो रहा है. एक्चुअली इसमें से ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी क्या करता है, इसमें से सपोज 10,000 बैग्स पर्सनल यूज करता है. राइट, ये पर्सनल यूज करता है, उसको लगता है कि चलो बाकी पार्टनर्स को समझ में नहीं आएगा, ये लेके जाता है और मार्केट में सेल करता है. सपोज एग्जांपल, वो मार्केट में जो भी प्राइस होगी वो मार्केट में सेल करता है और फर्म में लेके आता है, फर्म के काम के लिए लेके आता है सपोज 90,000 ओनली. एक को हमने ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्ट की है कि तू ये सब काम देख ले, और उसमें ए ने क्या किया, उसने राइट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो एक लाख में से 10,000 बैग्स खुद के पर्पस के लिए यूज किए या मार्केट में सेल कर दिया, एंड 90,000 ही खाली क्या किए, यूज किए. समझ में आ रहा है? अब क्या होगा कि बाद में सपोज पता चलता है कि ए ने ऐसे किया, फर्म डिनाइज टू पे टू सी, वो डीलर को बोलते हैं कि नहीं हम तुझे पे नहीं करेंगे. ठीक है, तू सी से ले ले. फर्म के ए एंड बी क्या बोल रहे हैं, हम तुझे 90,000 बैग्स का पेमेंट करेंगे. जो बैग्स एक्चुअली बिजनेस के लिए यूज हुआ ना, सीमेंट बैग्स जो बिजनेस ने यूज किया, उसका हम तुझे पेमेंट करेंगे, 10,000 का पेमेंट नहीं करेंगे. अब जो डीलर है वो बोलेगा देखो मुझे क्या पता है वो किसके लिए यूज कर रहा है, वो बिजनेस के लिए करने वाला है या पर्सनल के लिए करने वाला है, आई एम ए थर्ड पर्सन, मुझे क्या पता है वो फ्रॉड कर रहा है नहीं कर रहा है. तो ऐसे केसेस में ट्राई टू अंडरस्टैंड, भले ही सी ने फ्रॉड किया है,
राइट? 10,000 बैग्स का फ्रॉड किया है सी ने, बट क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ए बी एंड सी मतलब फर्म विल पे द एंटायर अमाउंट टू द डीलर, वो उसको 1 लाख बैग्स का पेमेंट करेंगे, एंड बाद में 10,000 बैग्स की जो प्राइस है, जो भी कॉस्ट है, किससे रिकवर करेंगे, सी से रिकवर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. So because a fraud is committed by a partner, you cannot, right, allow others to suffer. थर्ड पार्टीज को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं रख सकते. यहाँ पे थर्ड पार्टी का कोई मिस्टेक नहीं है. ये इस एग्जांपल में थर्ड पार्टी की कोई मिस्टेक नहीं है. थर्ड पार्टी ने गुड फेथ में आपको 1 लाख सीमेंट बैग सेल किए एट 350 ईच. उसमें से आप 10,000 किसके लिए यूज करें वो थोड़ी आपको पूछेगा. एंड नाउ द सी इज यूजिंग इट इन पर्सनल कैपेसिटी, ही इज यूजिंग इट फॉर हिज पर्सनल यूज. उसको लगता है किसको समझ में नहीं आएगा, इतने बैग्स में 10,000 बैग्स का क्या समझ में आ जाएगा. एंड ही सपोज सेल्स इन अ ब्लैक मार्केट, वो मार्केट में सेल कर देता है. अब क्या होगा, राइट, जब फर्म्स को बाकी पार्टनर्स को पता चलेगा कि यार इसने हमसे फ्रॉड किया, परचेस तो 1 लाख बैग्स किए, राइट, बट फर्म में खाली 90,000 बैग्स आ गए, 10,000 बैग्स इसने फ्रॉड किया. तो अब बाकी पार्टनर्स बोलते हैं इसको, डीलर को, कि हम तुझे 90,000 बैग्स का ही पेमेंट करेंगे, हम 10,000 बैग्स का पेमेंट नहीं करेंगे. तो सीमेंट बैग्स वाला बोल रहा है कि इसमें मेरी गलती क्या है, मैंने तो 1 लाख ही सेल किया ना, एंड ही परचेस इन द नेम ऑफ द फर्म. ये इसने आपके साथ फ्रॉड किया है, इसने आपके साथ फ्रॉड किया है. यू रिकवर ना, आप क्या करो, मुझे पूरा पैसा दे दो और उससे 10,000 बैग्स का क्या करो, रिकवर करो. व्हाई शुड आई सफर बिकॉज ऑफ फ्रॉड कमिटेड बाय योर पार्टनर. तो क्या लिखा है, ध्यान देना, राइट, यहाँ पे लिखा है, राइट, यहाँ पे लिखा है, द इनोसेंट पार्टनर्स इन दिस एग्जांपल ए एंड बी वर द इनोसेंट पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर however liable to third parties for the fraud of any of the partner, now the A and B are liable to the cement dealer for total 1 lakh bags. Try to understand, right? आगे क्या लिखा है, but they can proceed to claim damage against the partner who has committed such fraud, but they can recover the cost of 10,000 bags from the fraudulent partner. Again, the partner committing the fraud in the conduct of the business of the firm must make good the loss sustained by the firm by his misconduct, and the amounts so brought in the partnership should be divided between the partners. अब क्या हो जाएगा, जब वो 10,000 बैग्स हम उससे रिकवर करेंगे तो हम बोलेंगे 10,000 बैग्स का तू पैसा लेके आ जा, हम आज उसको पे करेंगे. सीमेंट डीलर्स को हम 10,000 का भी पेमेंट करेंगे 90,000 बैग्स के साथ, और वो जो 10,000 बैग्स का जो हमने पेमेंट किया है थर्ड पार्टीज को, हम किससे रिकवर करेंगे, वो सी से रिकवर करेंगे जिसने हमारे साथ क्या किया था, फ्रॉड किया था. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड नाउ, राइट, अब आगे क्या होगा, ये जो उसने 10,000 लेके आया है दैट विल बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स. आगे, एन एक्ट ऑफ ए पार्टनर इम्प्यूटेबल टू द फर्म or the principal of the agency, the act of the partner which makes, right, which results in the agency. Imputable मतलब क्या, right? Imputable मतलब making a person responsible, for the your actions. एक पार्टनर actions ले रहा है, act conduct कर रहा है, transaction कर रहा है, that action makes other partners liable. समझ में आ रहा है? An act of a partner imputable to the firm or the principal of the agency, yes, such action, right, makes other partners liable. क्या हो रहा है, which is a fraud. जब सी ने 1 लाख बैग परचेस किए और उसमें से 10,000 बैग्स के लिए उसने फ्रॉड किया, that action is action on behalf of the firm. That is an action of the firm. हम सी की एक्शन नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं, that is an action of the firm, because partner is an agent of the firm. His actions are actions of other partners. His actions is the action of the firm. So क्या लिखा है, an act of a partner which is on behalf of the firm or which is because of the principle of the agency. Such action, if is a fraud, क्या लिखा है देखो, such action which is a fraud, right, on his co-partners entitles the co-partners as between themselves to throw the whole of the consequence upon him. So जब C ने fraud किया तो A and B has a right to throw the consequence of that fraud
राइट, एंटायरली ऑन सी, मतलब वो 10,000 का 10,000 किससे रिकवर करेंगे? सी से रिकवर करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो वो 10,000 के लिए एबीसी नहीं शेयर करेंगे, पूरा का पूरा किससे शेयर करेंगे? द पार्टनर हु हैज कमिटेड फ्रॉड। तो फ्रॉड वाला पार्टनर ये नहीं बोल सकता कि हम पार्टनर है तो अच्छे दिनों में भी हम पार्टनर है और फ्रॉड में भी हम पार्टनर है, ऐसे नहीं होता है। पार्टनर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फ्रॉड के लिए पार्टनर्स नहीं है। अगर किसी ने फ्रॉड किया है तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डालेंगे। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले हमें थर्ड पार्टीज को पेमेंट करना पड़ेगा और बाद में हम किससे रिकवर करेंगे? सी से रिकवर करेंगे, द फ्रॉडुलेंट पार्टनर्स रिकवर करेंगे। मतलब 10,000 बैग्स की कॉस्ट एक्चुअली किसका लॉस हो जाएगा? सी का लॉस हो जाएगा। प्रोवाइडेड, पहले तो ये बात आपको ये पता चलना चाहिए कि उसने क्या किया था? फ्रॉड किया था। राइट, सो दीज वर, यहाँ पे एक्चुअली मैंने 4 लिखे और बाद में 3 ही पॉइंट्स में मैंने कवर किया है। क्या क्या 3 इंपॉर्टेंट ड्यूटीज है? फर्स्ट ड्यूटी क्या थी? टू कैरी ऑन ए बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। कोई भी आप एक्टिविटी करोगे तो आपका सबका इंटरेस्ट सामने होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। जैसे समझ में आ रहा है कि उसमें क्या होना चाहिए कि एनी एवरी एक्टिविटी, राइट, शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। एग्जांपल, आप कुछ गुड्स परचेस करने जाते हो तो यू एक्चुअली गो टू 3-4 शॉप्स, आप एक्चुअली देखते हो क्या प्राइस पे हमें मिल रहे हैं, एंड जिस कम प्राइस पे अच्छे गुड्स मिलेंगे हम वो परचेस करेंगे। तब हम ये नहीं सोचेंगे जाने तो क्या होता है, फर्म का है, ज्यादा पे मिलेगी तो भी कोई नहीं। ऐसे हमारा इंटेंशन, ऐसे हमारा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हमने क्या करना चाहिए? हमने एवरी एक्शन शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। सेकंड क्या देखा हमने? टू ऑब्जर्व द गुड फेथ। आई मीन, व्हेन आई से टू ऑब्जर्व द गुड फेथ, आई मीन, राइट, you should not make private profit at a cost of the firm. And third, to indemnify other partners for what? Your fraud. इस ये 3 चीजें, या 3 liabilities या 3 duties no one can take away from you. No agreement can absolve you from these duties. Try to understand. ठीक है? There is one question, I will take that question. अच्छा, किसका क्वेश्चन है? नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ड्यूटी क्या है? टू अटेंड डिलीजेंटली, दैट इज मिटिकुलसली। जो भी बिजनेस करोगे आप, पार्टनरशिप में बिजनेस करो, जो भी आप एक्शन लोगे, you should take appropriate care, because you should understand that your action not only binds you, also binds other partners. If your action converts into loss, that is not just your loss, that is loss of other partners as well. Your action सबके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आपको पता होना चाहिए, खाली आपके एक्शन से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, सबको फर्क पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, अभी लॉकडाउन क्यों है? भले ही लोग क्या बोलते हैं, चलो आपको आपकी फिक्र नहीं तो चलेगा, लेकिन बाकी लोगों की तो फिक्र करो, बिकॉज अगर आपको होगा तो बाकी लोगों को भी कोरोना हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो खुद की फिक्र नहीं तो जाने दो, लेकिन बाकी लोगों की तो फिक्र करो, इसलिए तो घर में रहो। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। सो राइट, योर एक्शन can create a big trouble for everyone, and therefore you should act very wisely, very carefully, right? सोच विचार से ही अपने काम करना चाहिए। क्या लिखा है ध्यान देना। Subject to the contract between the partner, it is duty of every partner to attend diligently to his duties in the conduct of the business of the firm. जो भी पार्टनर्स को आपने ऑथोरिटी दी है काम करने के लिए, if there is no such contract, every partner has a right to enter into contract. तो हमने देखा है कि right to act in the name of the firm, right to take active part into the business of the firm, ये right है। बट उस राइट के साथ एक लाइबिलिटी आती है। क्या लाइबिलिटी आती है, क्या ड्यूटी आती है? कि जो भी आप एक्शन लोगे, दैट एक्शन शुड बी मिटिकुलस, दैट एक्शन शुड बी केयरफुल, दैट एक्शन शुड बी लाइक डिलीजेंट। कैसे भी एक्शन ऐसे देखा जाएगा जो होता है, दैट शुड नॉट बी योर एटीट्यूड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है? यू शुड, राइट, इट इज योर राइट टू बी, राइट, active partner into the firm. You can always and always take active part into the firm if deed is silent, but you should not compromise with that right. You should understand that your actions bounds other partners, and therefore whenever you act in the name of the firm, try to understand, right, your action should not defame the other partners, your action should not put other partners at a loss, and therefore it is a duty of every partner, right, to attain diligently to his duties, right,
in the conduct of the business and to use his knowledge and skill to the common advantage of all the partners. And it is expected that the partners will use their knowledge, their common sense, their skills for the benefit of everyone. समझ में आ रहा है? So attend your duties diligently. Then, right? मैं जो सिंपल है वो लेता हूं पहले, ठीक है? ये हो गया, फोर्थ हो गया. उसके बाद सर ये मैंडेटरी क्यों नहीं है? कोई मुझे बोलेगा सर ये तो कोई भी पार्टनर अगर काम करेगा, कोई भी पार्टनर अगर फर्म के लिए काम करेगा, उसने केयर तो लेनी चाहिए, सबका सोचना ही चाहिए. Try to understand, every partner has not right to take active part in the business. So that right itself is not a mandatory. So this duty will also not be mandatory. Try to understand. समझ में आ रहा है? Therefore, if उन्होंने लिखा है subject to the contract, क्या बोला है कि मतलब वही पार्टनर जिनको हमने अथॉरिटी दी है काम करने की, उन्हीं पार्टनर्स के लिए लाइबिलिटी है. बिकॉज अदर पार्टनर्स कैन नॉट एक्ट इन द नेम ऑफ द फर्म और दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्ट इनटू द नेम ऑफ द फर्म. तो उनके लिए ड्यूटी का कोई सवाल ही नहीं है. वो पार्टनर जिनको ये अथॉरिटी है टू एक्ट इन द नेम ऑफ द फर्म, उनके लिए ड्यूटी है कि वो आप एक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. यू एक्ट इन द नेम ऑफ द फर्म बट एक्ट डिलीजेंटली. ठीक है? देन not to claim remuneration. What do you mean by claim remuneration? As आपने देखा होगा, right? If partnership deed is silent, हमने ये accounts में भी देखा है. If partnership deed is silent, can a partner claim remuneration in the form of salary or commission? No. If deed is silent, a partner is not entitled to, right, any salary or any commission. So it is their duty not to claim remuneration. आप बोलोगे क्यों ड्यूटी बोल रहे हो? बिकॉज अगर आप पार्टनरशिप में आए हो तो आप किस इंटेंशन से आए हो? साथ में आके बिजनेस करना. तो अगर आपने डिसाइड किया कि साथ में आके बिजनेस करना एंड यू आर परफॉर्मिंग ड्यूटीज, तो आप कुछ अलग फर्म पे फेवर तो नहीं कर रहे हो, बाकी पार्टनर्स पे फेवर थोड़ी कर रहे हो, आप सबके लिए काम कर रहे हो. हर एवरी पार्टनर इज टेकिंग एक्टिव पार्ट इन. जो भी पार्टनर्स हैं, जो भी पार्टनरशिप में आए, दे हैव कम टुगेदर. खाली प्रॉफिट शेयर करने के लिए तो नहीं आए. दे हैव कम टुगेदर टू एक्ट एंड उससे बिजनेस करना है और उससे प्रॉफिट कमाना है एंड वो प्रॉफिट शेयर करना है. मतलब आप फर्म के लिए काम कर रहे हो, मतलब आप खुद के लिए काम कर रहे हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप फर्म पे, यू आर नॉट ए एम्प्लॉई कि आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा. यू आर ए ओनर एंड आपने ही डिसाइड किया था कि बिजनेस करना है, तो यू आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू अदर पार्टनर्स. आप ये नहीं बोल सकते कि मैं काम कर रहा हूं, मैं आप पे फेवर कर रहा हूं. अरे तू पार्टनर है, यू आर ए ओनर. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू like take active part into the day to day management of the business. So next, अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, राइट? आगे, यस. सो यहाँ पे क्या लिखा है? ए पार्टनर इज इंटाइटल टू, क्या लिखा है मैंने? ए पार्टनर इज इंटाइटल टू रिसीव, सॉरी, इज नॉट इंटाइटल टू receive any remuneration in the form of taking part into the conduct of the business of the firm. एग्जाम्पल, आपकी मम्मी आपके लिए खाना वगैरह बनाती है, राइट? आपका सब करती है. Does she charge any remuneration? No, she doesn't charge and even you don't pay. क्यों? उसके पीछे क्या रीजन है? कोई मुझे बोलेगा कि ऐसे क्यों है? Any particular purpose? Because purpose बहुत सिंपल है. What is the purpose? कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये हम ऐसे मानते हैं कि मम्मी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें संभालना, एंड एट द सेम टाइम ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राइट हम राइट वो जो सर्विसेज दे रहे हैं उसकी वैल्यू करें. दोनों तरीके से. ट्राई टू अंडरस्टैंड. दूसरा और बात, राइट, अगर आप मुझे और बोलते हो, राइट, आपने एग्जांपल घर में कुछ काम है, घर साफ सफाई करनी है, आपने घर में साफ सफाई की, आप मम्मी पापा बोलते हो पापा 500 रुपए दे दो, मैंने काम किया. नो, बिकॉज यू आर ए फैमिली मेंबर, इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू शुड पार्टिसिपेट इन सच वर्क्स. यू आर नॉट डूइंग एनी फेवर. वैसे अगर आप पार्टनर हो, तो आप पार्टनर क्यों बने हो? तो बिजनेस करने के लिए. तो आप अगर साथ में आए हो तो ऑब्वियसली आपने काम करने के लिए साथ में आए होंगे. तो एज यू आर वर्किंग फॉर द पार्टनरशिप, राइट, यू आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू अदर्स. इट इज योर ड्यूटी, try to understand, to act for a common advantage. You are not doing any favor and therefore, right, it's your duty not to claim any remuneration for your services to the partnership firm. समझ में आ रहा है? So any partner, a partner is not entitled to receive any remuneration in any form, not in cash, not in kind, for taking part in the conduct of the business of the firm.